اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تو آج ہماری جو ہے 6 کلاس ہے اور ہم جو ہے اس میں بھی پریکٹس کریں گے۔ کل والی کلاس میں ہم نے پریکٹس کی تھی، آپ کو یاد ہوگا ہم نے جو ہے مذکر اور مؤنث کی پریکٹس اس طرح کی تھی کہ ہم نے کچھ مذکر الفاظ سے مؤنث بنائے تھے، ٹھیک ہے۔ ہم عربی گرامر سیکھ رہے ہیں اور شروع سے ہی ہم نے کیا سیکھا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ہے کوئی بھی جو زبان ہے اس کے سیکھنے کے لیے قواعد اس کے سیکھنا ضروری ہے، اور پھر ہم عربی زبان میں یہ قواعد سیکھ رہے ہیں کہ کون سا لفظ مذکر ہوتا ہے اور کون سا لفظ مؤنث ہوتا ہے، یا پھر ہمیں کیسے پتہ چلے کہ مذکر کون سا ہے اور مؤنث کون سا ہے۔ یہ اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں تاکہ اگر ہم کبھی عربی زبان میں جو ہے کچھ پڑھ سنیں، یا جیسے کہ اللہ کی کتاب ہے نا، خاص ہمارا مقصد اس کو سمجھنا ہے، تو جب ہم اللہ کی کتاب کو بغیر کسی ترجمہ کے یا بغیر کسی ٹرانسلیٹر کے سمجھنا چاہتے ہیں خود سے ہی، تو ہم جو ہے وہ اس میں ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کس طرح ہے۔ جیسے دیکھیں ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا کہ قلم لکھتا ہے، تو ہم قلم لکھتی نہیں کہتے کیونکہ یہ غلطی ہے۔ اگر ہم اپنی زبان میں مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر کر دیں تو یہ کیا ہوگی، یہ غلطی ہوگی۔ تو بالکل اسی طرح جو ہے عربی زبان میں بھی یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سا لفظ مذکر ہے اور کون سا لفظ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل بھی جو ہے ہم نے کچھ الفاظ سے مذکر سے مؤنث بنائے تھے، گولتا لگا کر علامتی مؤنث وہ کہلاتے ہیں، اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سا لفظ مذکر ہے کون سا لفظ مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ یوں سمجھے کہ آج میں 20 سے 25 لفظوں کی آپ سے ٹیسٹ لوں گی، آپ کو اس ٹیسٹ میں پریشان نہیں ہونا یا آدھے میں چھوڑ کر نہیں جانا، جب تک پریکٹس نہیں کریں گے، جب تک جو ہے لڑیں گے نہیں، کہ مطلب اس طرح لڑنا کہ بس مجھے جو ہے کرنا ہے کام اور مجھے سیکھنا ہے، جب تک محنت نہیں ہوگی تو تب تک ہو سکتا ہے ہمیں بات سمجھ میں نہ آئے۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہاں پر لفظ دیتی جاؤں گی اور پھر آپ کو بس یہ بتانا ہے کہ یہ لفظ مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ تو پہلا لفظ ہے وہ ہے مسجد۔ اگر آپ کو پچھلی والی کلاس میں یاد ہوں گی تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے یہ مذکر ہے یا پھر مؤنث ہے، ٹھیک ہے۔ ہم یہاں پر الفاظ کو الگ الگ کریں گے، مسجد مذکر ہے یا مؤنث ہے، جلدی بتائیں شاباش۔ کیا مسجد میں کوئی علامت ہے، گولتا یا الف مکسورہ اور الف ممدودہ ہے؟ نہیں۔ کیا مسجد میں جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی مذکر یا مؤنث آتا ہے؟ مسجد کی جگہ مسجد دا، یا کوئی جیسے باپ کی جگہ ماں آتی ہے، تو مسجد کا کوئی بھی اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسجد نہ ہواؤں کے نام میں سے ہے، نہ شہروں کے نام میں سے ہے، نہ جسم کے 2 اعضاء ہیں، تو یہ مسجد کیا ہوئی، یہ مسجد ہوئی مذکر، ٹھیک ہے۔ ہم پوری جو لسٹ ہے دیکھیں، یہاں پر میں تھوڑا لکھ دیتی ہوں۔ مؤنث میں ہم نے کیا سیکھا تھا، حقیقی اور غیر حقیقی، تھوڑا سمجھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم کلاس ہے، اس کی اہمیت کو تھوڑا سمجھیے گا۔ ایک حقیقی اور دوسرا غیر حقیقی، اور غیر حقیقی میں ہم نے 2 دیکھی تھی یہاں پر اقسام، ایک سماعی اور دوسری جو ہے علامتی، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو اپنی کلاس دیکھی ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا۔ اب دیکھیں یہ مسجد حقیقی مؤنث بھی نہیں ہے، غیر حقیقی میں سماعی بھی نہیں ہے اور علامتی بھی نہیں ہے، کوئی علامت نہیں ہے، اور عرب بھی اسے مؤنث نہیں استعمال کرتے، تو یہ مسجد کیا ہو گئی، مذکر ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا لفظ ہے یہاں پر جدار۔ کیا لفظ ہے دوسرا یہاں پر، جدار۔ جدار ہے یہاں پر دوسرا لفظ، آپ کو مجھے بتانا ہے کہ یہ جدار جو ہے یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ جدار کے مقابلے میں کوئی مذکر لفظ نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ جدار کے مقابلے میں، یا پھر اگر یہ مؤنث ہے تو کوئی مذکر لفظ، یا مذکر ہے تو مؤنث لفظ نہیں آتا، اور نہ ہی یہ سماعی کی لسٹ میں آتی ہے، نہ یہ جدار، نہ تو جدار کے معنی ہے دیوار، ٹھیک ہے، نہ شہروں کے نام ہے، نہ ہواؤں، نہ شراب کا نام ہے، نہ جسم کے وہ اعضاء ہیں جو جوڑے کی شکل میں ہیں، تو جدار جو ہے نہ علامتی مؤنث ہے، تو جدار بھی کیا ہوگا، یہ بھی ہوگا مذکر، ٹھیک ہے۔ جیسے مسجد مذکر، جدار بھی مذکر، سمجھیے گا بات کو۔ آپ یوں کریں، میں پوچھتی جاتی ہوں، جیسے سامنے ہوتا ہے نا، ایک ٹیچر پڑھاتی ہیں، یہ سامنے تو نہیں ہے لیکن کوشش کریں تھوڑا وہ فیلنگز آئیں، جیسے میں آپ سے سامنے پوچھ رہی ہوں، جیسے میں آپ کو لفظ دے رہی ہوں، دار کے معنی ہوتے ہیں گھر۔ اب مجھے آپ بتائیں کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ حقیقی مؤنث نہیں ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی مذکر نہیں ہے۔ یہ غیر حقیقی میں اس میں کوئی علامت نہیں ہے، ٹھیک ہے، 3 علامات ہم نے دیکھی تھی، اس میں یہ نہیں ہے۔
सिमाई मोनस में ये हो सकती है। ठीक है, आपने कुछ मुतफर्रिक अस्मा होंगे उसमें देखना है कि ये जिदार जो है मुज़क्कर है या मोनस है, खुद फैसला करें, अब मैं नहीं बताती। ठीक है, और उसके बाद जो है दूसरा लफ्ज़ है आइन। दूसरा लफ्ज़ क्या है? आइन। आइन के माने क्या है? आँख। अब बताएं आइन जो है वो किस लिस्ट में आएगा? सिमाई में आएगा या अलामती में आएगा या हकीकी में या मुज़क्कर में? आइन यानी कि आँख। जिस्म के वो अज़ा जो जोड़े की शक्ल में, अगर ये उनमें से है तो फिर आप फैसला करें कि ये मुज़क्कर है या मोनस है। आई होप जो है आपको बात समझ में आ रही है। मतलब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा फील करें जैसे कि मैं आपके सामने सिखा रही हूँ और आप मुझे जवाब भी दे रहे हैं। ठीक है, तो आइन किस में होंगी? सिमाई मोनस में। आइन सिमाई मोनस है। ठीक है, और जिदार दार जो है ये भी सिमाई मोनस में है क्योंकि अरब इसे मोनस इस्तेमाल करते हैं। तो ये दोनों दार और आइन जाएंगे मोनस की तरफ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ आइन और दार ये दोनों मोनस है। इसी तरह मस्जिद और जिदार क्या है? मुज़क्कर। ठीक है, और इसके बाद एक लफ्ज़ है कौकब। कौकब कौकब इसके माने होते हैं सितारा। कौकब कौकब। अब देखें कौकब के मुकाबले में कोई सितारी नहीं होती। ठीक है, तो ये भी इसको भी छोड़ें हकीकी को। और यहाँ पर जो है सिमाई ना ये शहरों का नाम है, ना मुल्कों का नाम है, ना शराब का नाम है, ना मुतफर्रिक अस्मा में से है, ना दो आज़ाद वाले है। ठीक है, और ना ही इसमें कोई अलामत है। तो कौकब कहाँ जाएगा? ये हो जाएगा मुज़क्कर की तरफ। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरह अगर हम एक और लफ्ज़ दें यहाँ पर गुरफ़ा। गुरफ़ा, तो यहाँ पर ये गोल ता जो है इसको आप देखकर कुछ तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कहाँ जाएगी? ये सीधा यहाँ जाएगी। ठीक है, गुरफ़ा। उसके बाद जो है यहाँ पर एक और लफ्ज़ है उसामा। कौन सा लफ्ज़ है? उसामा। उसामा ये मर्दों का नाम है और हमने एक्सेप्शंस देखी थी कि जो है अगर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो फिर चाहे कोई भी अलामत हो गोलता तो ये मुज़क्कर होगी। तो उसामा वैसे गोलता है लेकिन अगर किसी मुज़क्कर का नाम है तो हम इसको मुज़क्कर में ले जाएंगे। ठीक है, उसामा को हम किस में ले जाएंगे? मुज़क्कर में ले जाएंगे। तो ये कुछ अल्फाज थे, इसके अलावा भी हैं। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस हम अभी भी जारी रखते हैं। उसके अलावा एक और लफ्ज़ है फातिमा। फातिमा फातिमा तो वैसे ही मोनस है। ठीक है, लेकिन इसमें गोलता भी है तो ये क्या कहाँ जाएगी? ये मोनस की तरफ जाएगी। ठीक है, उसके बाद है रास। रास रास के माने हैं सर। रास रास। अब वोकेबलरी आप थोड़ी बढ़ाएं जो है लफ्ज़ जिनके अल्फाज की मैं माने बताती जा रही हूँ वो जो है आप नोट करते जाएं। रास के माने हैं सर, और सर दो जोड़े की शक्ल में होता है या एक होता है? आप फैसला करें। अगर एक होता है तो मुज़क्कर, अगर सर दो होते हैं तो मोनस। ठीक है, और इसके बाद जो है एक लफ्ज़ है यहाँ पर अनफ। अनफ अनफ के माने हैं नाक। नाक, अगर नाक दो होती है तो ये मोनस है और अगर नाक एक होती है तो ये मुज़क्कर है। ठीक है, और इसके बाद जो है कमर। कमर कमर के माने क्या है? चांद। कमर कमर के माने हैं चांद। तो अब मुझे बताएं कि कमर जो है वो क्या है? कमर मुज़क्कर है या मोनस है? अगर जो है ये इस लिस्ट में आता है सिमाई की लिस्ट में तो ये मोनस होगा, अगर नहीं आता तो क्या होगा? ये मुज़क्कर होगा। तो मुझे बताएं ये जो है, अच्छा मैं बता देती हूँ, ये इसमें शायद आप थोड़ा उलझ जाएं। ये जो कमर है ये मोनस है क्योंकि अरब इसे चांद को मोनस इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और मेरे ठीक है कहने पर थोड़ा तंग मत होइएगा, मैं कोशिश करती हूँ। ओके, यहाँ पर एक और लफ्ज़ है लिसान। क्या लफ्ज़ है? लिसान। लिसान के माने हैं ज़बान। तो ज़बान जो है अगर एक आज़ा है हमारे जिस्म का तो ये होगा मुज़क्कर, और अगर दो हैं तो क्या होगी? मोनस होगी। सही है, और उसके बाद जो है हमारे पास एक लफ्ज़ है एक लफ्ज़ है हमारे पास, क्या है? बाप। ठीक है, बाप। बाप के माने क्या है? दरवाज़ा। हमारे पास एक लफ्ज़ है बाप। बाप के माने हैं दरवाज़ा। तो दरवाज़ा बताएं, दरवाज़ा ना हकीकी मोनस है, ना ही सिमाई मोनस की लिस्ट में आता है, ना मुतफर्रिक अस्मा में से आता है यानी जिसको अरब खुद ही बोलते हैं, कोई कायदा ना हो, और ना ही अलामती में आता है। तो बाप कहाँ जाएगा? ये मुज़क्कर में जाएगा। देखिए बात को समझने की कोशिश करें। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर नहीं समझ आ रहा तो आप पहले वो देखें जिसमें हमने पढ़ा है कि कौन सी लिस्ट्स हैं जिसको हम मोनस या अरब मोनस समझते हैं, तो फिर हमें आसानी होगी। उसके बाद जो है हमारे पास एक और लफ्ज़ है नाफिज़ा। क्या लफ्ज़ है हमारे पास? नाफिज़ा। नाफिज़ा के माने हैं खिड़की। नाफिज़ा, तो ये गोलता देखकर आपको पता चल गया होगा कि ये क्या है? मोनस है। और फिर हमारे पास एक लफ्ज़ है उमर।
कौन सा लफ्ज़ है हमारे पास? एक उमर। उमर उमर ये मुज़क्कर है, ठीक है, क्योंकि उमर लड़कों का नाम है। और इसी तरह शुब्बाक, हमारे पास एक लफ्ज़ है शुब्बाक। शुब्बाक के माने हैं जवानी। शुब्बाक, शुब्बाक के माने क्या है? जवानी है। तो अब आप फैसला करें कि जो शुब्बाक है ये हकीकी मोनस भी नहीं है, सिमाई की लिस्ट में भी नहीं आता, इसमें कोई अलामत भी नहीं है, तो शुब्बाक कहाँ जाएगा? ये जाएगा मुज़क्कर की तरफ, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारे पास एक और लफ्ज़ है मिफ्ताह। मिफ्ताह, मिफ्ताह के माने हैं चाबी। मिफ्ताह, चाबी। अब चाबी का कोई चाबा नहीं है, ठीक है, तो ये इसमें भी नहीं आएगी, हकीकी में भी, सिमाई में भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जो है ये ना शराब का नाम है, ना आग का नाम है, ना ही शहर या मुल्क का नाम है, और इसमें कोई अलामत भी नहीं है। तो मिफ्ताह, चाबी। चाबी भले हम उर्दू में मुज़क्कर मोनस बोले, लेकिन ये अरबी में कहाँ जाएगी? मुज़क्कर की लिस्ट में जाएगी, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास एक और लफ्ज़ है रजुल। रजुल, रजुल के माने हैं आदमी। रजुल, रजुल के माने हैं आदमी। तो अब मुझे बताएं, आदमी ये क्या है? आदमी के मुकाबले में औरत होती है ना मोनस, तो ये हकीकी इसकी मोनस होती है, तो ये मुज़क्कर है, ठीक है, आदमी मुज़क्कर है। उसके बाद इससे मिलता जुलता एक लफ्ज़ है हमारे पास रिजल। रिजल, रिजल की माने है टांग, एक टांग, रिजल। तो रिजल जो है एक टांग, तो टांगे दो होती हैं, अगर तो दो आज़ा है तो मोनस, और अगर एक आज़ा है तो मुज़क्कर, ठीक है, ये आप फैसला कर लें। उसके बाद जो है हमारे पास एक लफ्ज़ है बैत। बैत है हमारे पास एक लफ्ज़। बैत के माने हैं घर। बैत के माने क्या है? बैत के माने हैं घर। तो घर जो है, घर का कोई, घर के मुकाबले में कोई मुज़क्कर नहीं होता, और ना ही जो है ये सिमाई की लिस्ट में आता है, और ना इसमें कोई अलामत है। तो बैत अगर बोलता होती तो हम इसमें समझ देते, लेकिन बैत मुज़क्कर है। तो यूं ही आप जो है खुद फैसला करते रहें, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा सीखने की, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ऐसे ही जोड़े रखें। अस्सलाम वालेकुम।